India has a long history of Islamic culture spanning well over 1,000 years. Of all of Islam's imports to our country, a big chunk of the propagation of Islam was through the advent of Sufism. In recognition of this, Prime Minister Narendra Modi has met with a delegation of leaders from 9 different dargahs across the country. Amidst various discussions, a point that came up was the idea of Sufi corridor in India along the lines of Ayodhya corridor being put in place before the inauguration of Ram Mandir. India's history of Islam and Sufism makes for a visual and sensory overload that people from the world over are eager to visit. So, to discuss this idea of the Sufi corridor, we have with us today people from the Sufi Khanqahs and people who are closely associated with the movement today. And quickly also taking a look at some of the most revered Sufi shrines that could form a part of this Sufi corridor. So, while we talk about the Sufi saints and the message of love and reverence to the God that they provided, let's also take a look at what we call as the Mecca of Sufism, which is in Delhi. There have been several of the Sufi saints that had formed Delhi as their Garh, as their main place of existence. Quickly taking a look at Bada Taj Bagh Dargah in Nagpur in Maharashtra. Quickly taking a look at the next state, where Hazrat Bal Dargah Sharif, Srinagar, Jammu and Kashmir could also become part of the Sufi corridor. The next state, we also take a look at Rajasthan, where Ajmer Sharif Dargah is located in Ajmer. Quickly taking a look at in Haryana as well as in Delhi and other parts of the country, where the mazar of several of the Sufi saints that have been recognized and acknowledged and known world over have been situated. Dera Baba Murad Shah, Nakodar, Jalandhar, Punjab is where the shrine is. We have Hazrat Tawakkal Mastan Dargah in Bengaluru in Karnataka. Let's keep moving this plate so that I can just quickly read them out. We have Madurai Maqbara, which is in Madurai in Tamil Nadu, another important Sufi saint whose Maqbara is celebrated and commemorated. Mian Khan Chishti Maqbara, Ahmedabad in Gujarat. We also have Hazrat Nizamuddin Dargah in Delhi. We have Kutubuddin Bakhtiyar Kaki Dargah, which is also situated in Delhi. There is Mirza Ghalib Ki Haveli that is located in Delhi. We also have the Mazar of Mirza Ghalib, the well-known poet and philosopher, which is called Mazar-e Mirza Asad Ullah Khan Ghalib. This is also located in Delhi. There is Kaliyar Sharif, which is in Roorkee in Haryana. There is Bu Ali Shah Kalandar Maqbara, which is located in Panipat, again in Haryana. Fatehpur Sikri in Uttar Pradesh is also a dargah of a famous Sufi saint. Haji Ali Dargah in Mumbai, a very famous point of visit for several Muslims across the globe. Bada Taj Bagh Dargah in Nagpur in Maharashtra. And while we take a look at several of these dargahs, the most prominent ones that we have just identified, and they span from Srinagar in Jammu and Kashmir to Haryana, to Delhi, in Rajasthan, in Telangana, in Tamil Nadu,
in Karnataka. So we take a look at what is the trajectory that the Sufi corridor could take once this idea is implemented and executed. Let's start my conversation with Pyare Khan. He joins me. He is the chairperson of the Hazrat Baba Tajuddin Trust. Pyare Khan was amongst the many who actually met Prime Minister Narendra Modi. Pyare Khan ji, thank you very much for joining us on the telecast and also getting a response from you about how was your meeting with the Prime Minister as well as Union Minister Smriti Irani, who then encouraged the idea of actually creating the Sufi corridor. मैडम, प्रधानमंत्री जी से मिलके इतना अच्छा लगा कि हम आपको बता नहीं सकते कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने कि हर इंडिया के हर दरगाह से वहाँ के चेयरमैन ने, तो हर बार कैसा होता था कि चादर के लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल व्यक्ति जाता था। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने पूरे इंडिया से, उनके मन में कुछ चल रहा था, वो वहाँ जाने के बाद हमको पता चला, तो उन्होंने पूरे इंडिया के जितने भी दरगाह के चेयरमैन थे और जिन्होंने सोशली कुछ अच्छा काम किया, उनको वैसे लोगों को बुलाया था। और उसके जाने के बाद उन्होंने मुझसे, मेरी उनसे काफ़ी देर चर्चा हुई कि भाई मैं जब अरब में जाता हूँ तो अरब के मुसलमान जो है, जितने भी मुस्लिम देश है, उनका वो एकदम दिल खोल के स्वागत करते। तो इंडिया में वो आएंगे तो मैं उनको क्या दूँ, तो उनके मन में, और स्मृति ईरानी जी ने मुझे कहा कि हम भारत में एक सूफी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और उसके लिए चाहे तो मैं फंड इमीडिएट आपको दे सकती हूँ। तो मैडम, मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मेरी एक पूरी टीम काम कर रही है। तो एक ऐसा कॉरिडोर के जिसमें विदेश से जो मुसलमान आए, हिंदुस्तान में आए, ये एक बहुत बड़ी सोच है मोदी जी की। मैं उसके लिए उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को इंडिया में क्या दे, उसके लिए भी बहुत एक अच्छा, और उससे हमारे देश में एक व्यापार बढ़ेगा और देश को पर्यटन का एक पर्यटन के लिए बहुत सारा, यानी हमारे देश को एक दर्जा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। और हजरत बाबा ताजुद्दीन की दरगाह एक इंडिया में, एशिया की एक ऐसी दरगाह है कि इतनी खूबसूरत दरगाह है, और इसमें श्री देवेंद्र फडणवीस और श्री नितिन गडकरी जी ने लास्ट टाइम 132 करोड़ रुपए दिया था और वापस से अभी 224 करोड़ रुपए दिया है। तो ये एक मॉडल सेट होगा दरगाह का। अगर आप देखेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी दरगाह है ये, जो जिसका लैंड है 84 एकड़ लैंड है इस दरगाह के पास, और ये सबसे खूबसूरत दरगाह है। और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आ रहे हैं, इटली से आ रहे हैं, अरब से आ रहे हैं, तो बहुत सारे काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो ये एक आइडिया बहुत अच्छा है और मुस्लिम समाज के लिए एक ये मील का पत्थर साबित होगा। ये प्यारे खान जी, ये जो आइडिया प्रपोजल जो आपने प्राइम मिनिस्टर के आगे रखा कि ये सूफी कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, ये सूफीज़म का एसेंस क्या है? हम जानते हैं पॉपुलर फोकलोर में, जैसे हम लोग तो जानते हैं कि गालिब हो गए या आमिर खुसरो हो गए, या हम बात करें कबीर की, कबीर के दोहे, कबीर के जो ये सूफी के गाने वो गाते थे, जो भजन वो करते थे भगवान के लिए, वो काफ़ी फेमस है। पर जैसा कि आपने बताया कि ऐसे बहुत सारे सूफी सेंट्स हैं जो कि शायद इतने पॉपुलर नहीं होंगे। देखिए, सूफीज़म वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसा हमारे देश में अलग अलग धर्म है, यानी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो आप देखिए, मुस्लिम जो है वो मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए, हिंदू व्यक्ति मंदिर में जाता है या क्रिश्चियन चर्च में जाता है। लेकिन सूफी एक ऐसी जगह है, सूफियों की जो दरगाह है वो एक ऐसी है कि जहाँ पे हर समाज का, हर देश का और हर इसका व्यक्ति वहाँ पे आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सूफियों ने क्या देश में एक ऐसा ताना बाना बुन के रखा है कि जो धर्म को और लोगों को जोड़ के रखे। तो ये एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। दरगाह एक ऐसी होती है कि जहाँ पे हर कोई जा सकता है। नहीं तो आप जनरली अगर देखेंगे तो मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, हिंदू व्यक्ति होते हैं वो मंदिर में जाते हैं, क्रिश्चियन होते हैं वो चर्च में जाते हैं, बौद्ध होते हैं तो वो इसमें दीक्षा भूमि में जाते हैं। तो ये सूफियों का दरगाह एक ऐसा है कि यहाँ सब, और हम अपने आप को प्राउड ये करते हैं कि हमको ऐसी जगह बिठाया गया है। तो ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा आइडिया नहीं था मैडम, ये स्मृति ईरानी जी का आइडिया था कि उन्होंने बोले कि सूफीज़म पे काम करना है करके। और हम तो एकदम इतने चकित रह गए कि प्रधानमंत्री जी के मन में और स्मृति ईरानी जी के मन में इतनी बड़ी बात आई। ये पूरा मुस्लिम समाज एकदम शौक में है
कि वो सोच भी नहीं सकता था कि सपने में कि ये उनकी सोच है। ये बहुत बड़ी मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड की बात है मैडम। जी और इस प्यारे खान जी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट करने का ये एक प्रपोजल रखा है, आप क्या किस तरह की मदद चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? कि इंडिया में जो सबसे बड़ा पैसा है हमारे ताजबाग को मिला। मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से यही कहा है कि जिस हिसाब से आपने नागपुर को पैसा, यानी आपकी सरकार ने नागपुर को पैसा दी है, वैसी अगर इंडिया की पूरी दरगाहें को अगर ये पैसा मिलेगा तो इसमें बहुत अच्छा विकास भी होगा, और हमारे यहाँ बहुत सारे देश और विदेश से लोग आकर्षित होंगे। जैसा अभी नागपुर में आ रहे, नागपुर इज द सेंट्रल हब है इंडिया का। तो वैसा ही उस हिसाब से तो मैं इस पे अभी काम कर रहा हूँ। स्मृति ईरानी जी को मैंने कमिटमेंट दिया है कि विद इन 1 वीक मैं इस कॉरिडोर का आपको पूरा रोड मैप बना के दूंगा कि हमको कैसा करना है, और ये ताजबाग दरगाह का जो एक मॉडल होगा वो हम पूरे इंडिया में सेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब ये जब हम कॉरिडोर की बात करें, सूफी कॉरिडोर की बात करें, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था कुछ सालों पहले कि एक रामायण सर्किट की बात की हुई, जहाँ पे ये ट्रेन्स जाती हैं और जहाँ पे भी जो एपी सेंटर्स है, जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, लोकेशंस हैं, जहाँ पे लॉर्ड राम, जहाँ पे रामायण के रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट बातें हुई थी, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई थी, उन एरियाज़ को ये ट्रेन चलती हुई एक रिलीजियस टूरिज्म का एक मोड बनेगी। उसी तरह जब हम बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें, कुछ इस तरह ही इसकी भी सोच प्लान की गई है। जब हम सूफी कॉरिडोर की बात करते हैं, ये एक आइडिया क्या है? क्या ऐसे ही आप चाहते हैं कि एक सूफी टूरिज्म की एक रेल रोड बनाई जाए जिसमें जो भी वहाँ पे उस टूरिस्ट हो, जो भी पैसेंजर्स हो, वो हर एक लोकेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये श्रीनगर में है, हरियाणा में है, दिल्ली के अंदर है, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, इन सब जगहों से होती हुई जाए और लोगों को अपने अपने होने का परिचय दे? मैडम जैसा मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे मिस्टर मोदी जी बार बार बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसकी एक कड़ी है ये। आवाज आवाज जी जी बिल्कुल। मेरे साथ बने रहिए प्यारे खान जी। आई हैव ऑल्सो विद मी मौलाना कौसर हसन मजीदी। ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द सूफी खानका एसोसिएशन। मौलाना कौसर हसन मजीदी जी, what is your inference that you took away after this big announcement that came, this meeting of the 9-member delegation of the dargahs of the country? They met the Prime Minister, and finally, after a lot of discussion, the idea came into being that there could in fact be a Sufi corridor that could be built in the country. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी सूफी खानका एसोसिएशन का एक प्रस्ताव पारित हुआ था हमारी कार्य समिति में सन 2001 में। हमने उनसे ये कहा था कि जिस तरीके से बिहार में वहाँ के जो खानका मुनमिया के सज्जादा नशीन हैं डॉक्टर शाह सैयद शमीमुद्दीन अहमद मुनमी साहब, उन्होंने एक प्रस्ताव बिहार सरकार को दिया था और बिहार सरकार ने सूफी सर्किट का निर्माण किया था। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके ये बात कही थी कि बिहार की तर्ज पर देश के जो प्रमुख जो है सूफी स्थल हैं उनको जोड़ करके सूफी सर्किट बनाया जाए। तो हमारी वो मांग हमको पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से। और ये एक बड़ा अच्छा कदम है, जैसा कि अभी प्यारे खान साहब बता रहे थे और आपने भी चर्चा की थी कि भारत की जो प्रमुख दरगाहें हैं उसमें से जो है जो बड़े बड़े महानगर हैं, जैसे कि अजमेर शरीफ की दरगाह है, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, नागपुर में बाबा ताजुद्दीन की दरगाह है, और मुंबई में जो है वो हाजी अली शाह और की दरगाह है और माहिम शरीफ है। उसी तरह मदुरई में है, तमिलनाडु में है, रामेश्वरम में भी दरगाह बनी हुई है, कोलकाता में भी है, पटना में भी है। तो ये सारी दरगाहों को अगर मतलब जो है रेल मार्ग से, जो बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, रेल मार्ग से और हवाई मार्ग से इनको जोड़ा जाएगा
तो निश्चित तौर पर और इसके लिए बाकायदा जिस तरीके से अन्य सर्किट बनी है, जैसे बौद्ध सर्किट बनी है और रामायण सर्किट बनी है, इसी तरीके से अगर बनाई जाएगी तो इसके कई एक फायदे होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि इससे पर्यटन का विकास होगा, और दूसरी बात ये है कि जो लोग श्रद्धालु की जो है वो कम समय में ज्यादा जियारत करना चाहते हैं, तो उनका समय भी बचेगा और अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और साथ में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि भारत सूफी संतों का देश है, और ये सूफी परंपरा वो परंपरा है जो भारत की आध्यात्म परंपरा को और भारत की सांस्कृतिक परंपरा को मिला करके चलती है। कि जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक सूफी संत गुजरे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक दोहा लिखा था और कहा था उन्होंने कि सरग नखत तन रोवा तेते, विधना के मारग है जेते। तो ये वो उसको प्रदर्शित करता है, जैसा कि हिंदू आध्यात्म में जो चीज आती है। उसी तरह बाबा बुल्ले शाह एक दूसरे सूफी गुजरे हैं जिन्होंने कहा कि होली खेलूं मैं पढ़ के बिस्मिल्लाह। तो एक तरफ तो वो आध्यात्मिक परंपरा को जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो सांस्कृतिक परंपरा को जोड़ रहे हैं। यही सूफीवाद है जो सारी परंपराओं को जोड़ करके देश की एकता और अखंडता और भाईचारे के लिए काम करता है। जी मौलाना जी, यहाँ पे अगर हम सूफिज्म की बात करें, यहाँ पे ये सूफिज्म कोई मज़हब को नहीं मानता, कोई रिलीजन को नहीं मानता, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें सूफिज्म और सिखिज्म का बहुत ही एक क्लोज तालमेल रहा है। चाहे वो देखा जाए कि गुरु नानक देव जी के साथ सूफी सेंट्स का एसोसिएशन रहा हो, चाहे मैं कहूँ जो कबीर के दोहे हैं उसमें हिंदी के कल्चर, हिंदी के रिलीजन, हिंदुओं के रिलीजन के बारे में भी बात होती है। कबीर के दोहों को स्पष्ट तरह के तरीके से रेफरेंस किया जाता है, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो क्या ये एक जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, जहाँ पे जो सूफी सेंट्स को, सूफियों की दरगाहों को हाईलाइट किया जाता है, क्या ये एक प्रोपगेशन होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी की तरफ, जहाँ पे सूफी संतों ने यही एक एफर्ट की थी कि भारत उसके इतने सारे रिलीजन्स हैं, उनको सब संकृतित करते हुए एकजुट होके आगे बढ़े? जी जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि सूफिज्म इज द रियल सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की बात होती है, लेकिन सेकुलरिज्म अगर देखना है तो आप सूफिज्म में देख सकते हैं। सूफिज्म का एकमात्र सिद्धांत है कि धर्म आपकी प्राइवेट मानने की चीज है। धर्म आपके लिए एक प्राइवेट सब्जेक्ट है। आपके अपना आचार, आपका अपना विचार आप तक सीमित होना चाहिए। आप अपनी चीजों को दूसरों पर नहीं लाद सकते हैं। यही सूफिज्म है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको मिलता है, मैं फिर कोट करूंगा मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह को, जो ये कहा करते थे सरग नखत तन रोवाते थे, यानी आसमान में जितने तारे हैं और शरीर में जितने रोए हैं, विधना के मार्ग हैं जेते, उतने ही ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं। वो इस चीज को माना करते थे, जबकि वो कबीर की तरह वो सूफी नहीं थे, जबकि वो ऐसे सूफी थे जो इस्लाम की जो परंपरा है, रोजा है, नमाज है, शरीयत है, उसमें विश्वास करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ये विचारधारा थी कि वो सभी धर्मों के लोगों की बातों का आदर किया करते थे। उसी तरह जब हम बाबा बुल्ले शाह के पास जाएंगे तो बाबा बुल्ले शाह ये कहते हैं कि होली खेलूं मैं पढ़ के बिस्मिल्लाह। यानी वो जहां पर एक तरफ जो हमारे यहाँ का मुल्लावाद है वो ये कहता है कि अगर शरीर पर होली का अगर एक कतरा लग जाएगा तो वो उतना हिस्सा काट दिया जाएगा, तो उसको ये पैगाम देने के लिए कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये नफरत फैलाने वाली बात है, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के होली खेलूंगा। यानी इस्लाम में कोई भी नेक काम जब किया जाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके किया जाता है। तो वो होली के त्योहार को, होली के प्रोग्राम को इतना पवित्र मान रहे हैं कि वो इस तरीके की बात करते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है वो ताजाबाद शरीफ नागपुर में मिलता है, कि जहां पर आप देख सकते हैं कि हर धर्म के अनुयायी और वो जो उनकी व्यक्तिगत आस्था है, वो किसी भी भगवान की पूजा करते हो या वो किसी भी मतलब जो है वो कास्ट के हो या किसी भी रिलीजन में हो, वो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हो या रोजा रखते हो, लेकिन जब उस दरगाह पर जाते हैं तो वो समान रूप से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। यही सूफी परंपरा है जो सभी
को अपने साथ मिला करके, आत्मसात करके और सारी चीजों को संकलित करके एक पैगाम देती है। वो ये पैगाम देती है जो सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि गर मुफसदम मंजाने हूँ, गर मुसलहम मंजाने हूँ, उजान मन मंजाने हूँ, तू दरमियाना किस्त को, यानी अगर मैं बुरा हूँ तो उस अपने रब का हूँ, और अच्छा हूँ तो मैं अपने रब का हूँ। मेरी अच्छाई और मेरी बुराई का फैसला करने वाला मेरा रब है, तू कौन होता है। यही सूफी परंपरा है जो बंदे को ईश्वर से मिलाने का काम करती है, लेकिन साथ में दूसरे ईश्वर के दूसरे बंदों को अधिकार देने और उनसे प्यार करने की जो है वो तालीम देती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा, यहाँ पे प्यारे खान कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी प्यारे खान जी। मैं आपका एक जो इनसे आप क्वेश्चन कर रहे थे उसका एक आंसर देना चाहूँगा। ये ताजाबाद का एक नागपुर का ये एक ऐसा दरगाह है पूरे वर्ल्ड में, इसमें 9 जाति के 9 लोग हैं। जैसा इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, उसके बाद बौद्ध है, और सभी समाज के, बोहरा है, खोजा है, पारसी, तो 9 समाज के 9 लोग हैं। तो ये इंडिया का या वर्ल्ड का एक यूनिक दरगाह है कि जहाँ पे 9 समाज के 9 लोग हैं। और आपको इसकी खासियत मैं ये बताता हूँ, बाबा का जब उर्स होता है तो फ्लैग ऑफ करने के लिए जब तक एक हिंदू व्यक्ति आके फ्लैग ऑफ नहीं करता इस दरगाह का, तो तब तक सारे मुसलमान जितने भी लाखों की तादाद में आते हैं उर्स में, बाबा के उर्स में, यहाँ तकरीबन 8 दिन में 25 लाख लोग आते हैं। लेकिन जब तक फ्लैग ऑफ कोई हिंदू व्यक्ति के हाथ से नहीं होता है तब तक ये सारे के सारे लोग खड़े रहते हैं। तो ये इस दरगाह की खासियत है। ये वर्ल्ड का एक ऐसा दरगाह है कि जहाँ पे 9 जात के 9 लोग हैं। तो ये इस दरगाह की खासियत ये है कि यहाँ पे सबको जोड़ के रखने के लिए ही ये पैगाम दिया गया। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली wonderful example of unity in diversity. Also with me on the telecast is Firoz Bakht Ahmed. And Firoz Bakht Ahmed, we were talking about this unique proposal that has been given impetus to by the government of India and the Prime Minister himself, where there is an idea of creating a circuit that will allow for the dargahs of the biggest saints of Sufism to be then, and their stories and their tales and their legacy be told to the tourists who get on board this circuit. All right, thank you so much for giving me this opportunity. Let me tell you one thing. The world's biggest Sufi conference was conducted by Shri Narendra Modi, if I remember it correctly, sometime in 2015 in Vigyan Bhavan. And Sufis from all over the world came there. And Prime Minister Modi himself is a kind of a living Sufi, right? No matter which religion he belongs to. But the way he talks to he talks to the people, the way he speaks in in a language of mission and vision for humanity, for humaneness, above politics, above religion. So it proves that Sufism is actually in his heart, right? I remember once I gave him a book of Maulana Abul Kalam Azad, which I authored myself, and he said, "ये तो हमारे दिल में रहते हैं." Maulana himself was a Sufi. So there is this element of Sufism in Mr. Narendra Modi, and the way he has been running his government. You see, apart from that, not only his government, the way he has been recognized all over the world as as a doyen of peace, and I am sure, I am 100% sure that after the Pran Pratishtha of Ram Mandir, this will have positive vibes all over the world, with Ukraine war stopping, with war in the Middle East also stopping. I have a very firm belief in that kind of a thing. Maybe I'm not right, but this is what I believe in. Okay. So Prime Minister Modi, just a minute, let me complete, please. Don't interfere. Prime Minister Modi also took 99 names of Allah in that very World Sufi conference. So he is all over, for Sufism, and no wonder he thinks that the biggest Sufi in the history of the world, his dargah, his teaching should go to the people in general. Okay. All right, fair enough. I also have with me Hazrat Sayyid Muhammad Ashraf. He is the chairperson of the World Sufi Forum. Hazrat Sayyid, when you organize the World Sufi Forum, what is
what is the emphasis that you want to put? What is the message that you want to give to the world and the participants of it? वर्ल्ड सूफी फोरम को जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, उसका मकसद ये था, जो ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी हैं, इनकी जो तालीमात हैं और जो उन्होंने अपने ज़िंदगी के साथ लोगों को पैगाम दिया था, वो था ये कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सब के लिए। तो इस एटमॉस्फेयर में, जबकि आज के दिन में नफ़रतों का माहौल इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था और हर तरफ टेररिज्म और इस तरह के वाक़यात सुनने में आते थे, तो ऐसे वक्त में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और इन सूफियों की जो तालीमात हैं उसे आम करने की ज़रूरत महसूस करते हुए मैंने पूरी दुनिया के सूफी स्कॉलर्स को बुलाया और ये दुनिया को बताने की कोशिश किया है कि तरक्की के लिए इंसाफ ज़रूरी है, और इंसाफ जब तक कायम नहीं होगा अमन और शांति कायम नहीं होगी, और अमन और शांति कायम नहीं होगी तो तरक्की नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। एक इंसान से एक इंसान की मोहब्बत का जो रिश्ता है, जिस पर सूफीज़म बहुत फोकस करता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है। चूँकि मैं सूफ़ी फैमिली से हूँ, तो हमको यह बचपन से सिखाया गया है कि जब तुम्हारे पास कोई आए तो उससे ये मत पूछो कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारी ज़ात क्या है, किस जगह के हो, तुम्हारी ज़बान क्या है। अगर कुछ पूछना है तो ये पूछो कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है। जी बिल्कुल। तो इंसानियत के इस रिश्ते को, भाईचारे को, अपनी गंगा जमुनी तहजीब को, जो हमारे मुल्क की बहुत बड़ी धरोहर है, जो हमारी बहुत बेशकीमती दौलत है, इसे सेव करने के लिए वर्ल्ड सूफी फोरम का इनेकाद किया गया था। हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ जी, यहाँ पे हम सूफिज़म की बात करते हैं और ये सूफ़ी कॉरिडोर का जो एक प्रपोज़ल रखा गया है और इसको गवर्नमेंट की भी सहमति दी गई है, अब ये प्रोजेक्ट कैसे आगे लेके जाएं, कितने समय तक ये हम देख सकते हैं पूरा हो जाएगा, और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे पूरे देश को? देखिए, ये जितने भी आस्थाने हैं ये एक पब्लिक प्लेस है। यहाँ बिना तफरीक मजहब व मिल्लत हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं, हर हिंदुस्तानी वहाँ पहुँचता है। किसी एक सेट, किसी एक धर्म या किसी एक जात से जुड़ी हुई जगह नहीं है, सब पब्लिक प्लेस। तो इसको जो सूफी कॉरिडोर को बात किया गया है, मैंने ही इस बात को उठाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है ग्रीन सिग्नल भी दिया है कि बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को तैयार करिए और हमको दीजिए और इस पर हम आगे काम करेंगे। तो इस तरह के जो प्लेसेस हैं वहाँ पर हम जब प्रैक्टिकली जाकर देखते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत बड़ी कमी है। रोड से दूर है तो रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। जो श्रद्धालु वहाँ आते हैं उनके बैठने का, उनके रुकने की जगह का इंतज़ाम नहीं होता है। तो ख़ास तौर पर जो ईयरली प्रोग्राम होते हैं उर्स का, तो उस पीरियड में इन मज़ारों पर बहुत बड़ी भीड़ होती है, लाखों का मजमा होता है और हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं। तो उनकी सहूलत के लिए वहाँ जो ज़रूरतें हैं, तो वो एक अगर सूफी सर्किट का कायम होता है तो वहाँ पर इस तरह का डेवलपमेंट होगा तो लोग जो वहाँ आते हैं श्रद्धालु, तो उनको आसानियाँ पैदा होंगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आना जाना आसान होगा। और जब ये कनेक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पर लाई जाएगी तो हमारे देश का जो है टूरिज्म में भी इजाफा होगा, बाहर के भी लोग यहाँ पर आएंगे और एक कनेक्टिविटी, कल्चरल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, आना जाना बढ़ेगा। और जो भाईचारा हम कायम करना चाहते हैं इंसानियत का, वो भाईचारा मजबूत भी होगा और सिर्फ देश में ही नहीं, बाहर मुल्कों से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। एक रास्ता निकलेगा जिससे हम अपने ताल्लुकात को और बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे बात करें, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऐसी विचारधारा वाले लोग, पब्लिक फिगर्स ये भी कहती हैं कि मुसलमान हमारे देश में एक भय में रहते हैं, एक फियर में रहते हैं। क्या इससे आप कितनी सहमति रखते हैं? और ऐसे क्या आपको लगता है ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि सूफी कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स अगर इनको एक जगह मिले पनपने की, इनकी ग्रोथ हो,
जो इस तरह के नैरेटिव्स है, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो देश के बाहर से कुछ लोगों के हो या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको डिसमेंटल करने में ये मदद देगा? बहुत मदद देगा। देखिए, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, तो मुसलमानों के लिए तो बहुत से नेगेटिव एटमॉस्फेयर खड़े किए गए हैं और हर आदमी अपने हिसाब से इनके लिए नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ये एक ऐसा पॉजिटिव है जो मुस्लिम्स के लिए भी पॉजिटिव वेव्स रखता है, उनकी सोच को बदलने में मदद करेगा। और जो इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पर जो एक नेगेटिविटी के माहौल क्रिएट किया गया है, ये एक ऐसा पॉजिटिव है कि ये वोकल होगा, आवाज तो नहीं होगी लेकिन इतना वोकल होगा कि इसके इफेक्ट्स जो हैं देश के वासियों को महसूस होगा बहुत दूर तक। जी, यहाँ पे क्या आपको लगता है भारत एकजुट होकर, जहाँ पे हम देखते हैं कि दुनिया भर में, चाहे वो आप देखें आप इज़राइल में हमास की जो जंग छिड़ चुकी है, यहाँ पे बेसिकली जूस और अरब्स का ये एक बहुत ही सदियों पुराना ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे फिर से उभर के आया है। चाहे हम देखें बांग्लादेश में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। पाकिस्तान में देख लें, ये जो माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, उनके अगेंस्ट भी बहुत अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अफगानिस्तान में एक यही छवि देखने को मिलती है। इस माहौल में क्या भारत यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल उभर के आ सकता है कि एक सिंक्रेटिक कल्चर दिखाई देता है भारत के अंदर, जहाँ पे सारे रिलीजन्स, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, जैन के फेथ के रहने वाले हों, बुद्धिस्ट हो, यहाँ तक कि पारसीस को भी यहाँ पे एक जगह मिली है, जूस को भी यहाँ पे जगह मिली है, यहाँ पे किसी के अगेंस्ट अत्याचार नहीं हुआ है। ये एक एग्जाम्पल क्या पूरा विश्व भारत को फॉलो कर सकता है इस समय? भारत हमेशा से इसी बात का एग्जाम्पल रहा है, अनेकता में एकता की, और ये हमेशा ये पैगाम भारत देता रहा है। अब एक्सेप्टेंस की बात है, हम तो ये कहते हैं कि हम एक खुला हुआ चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, जहां पर एक ही कम्युनिटी, एक ही फेथ के लोग हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन एक भारत ही देश ऐसा है जहां अनेकता में एकता नजर आती है। यह देश वो है जहां 100 किलोमीटर दूरी पर आस्थाएं बदल जाती हैं, जबान बदल जाती है, खाना पीना बदल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक हैं। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और जहां तक अनादर करना किसी भी धर्म की किसी भी जगह को, उनके पवित्र स्थलों को डिस्ट्रॉय करना या उसे नुकसान पहुंचाना, तो एक इस्लामिक स्कॉलर, एक सूफी होने के नाते इंसाफ का तकाजा ये है कि मैं ये बात, जो सच्ची बात है, मैं सामने रखूं। यह अन इस्लामिक है। अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर इस तरह की हरकतें करता है, किसी भी की मजहबी जगह को पर्सनालिटी आता है, वो इस्लाम का नाम लेता है, तो वो इस्लाम नहीं है, अन इस्लामिक है। सूफियों ने हमेशा इंसाफ की बात की है, जो सच्ची बात है उस सच्ची बात को सामने रखा है और प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते। यही वजह है कि इस मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये कहता हूँ कि सूफीज़म को बहुत फ़रोग़ मिला, क्योंकि हमारा मुल्क सूफी संतों का देश है और आज भी इस देश में सूफी संतों की विचारधारा अपना एक असर रखती है और हिंदुस्तान की मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी विचारधारा से जुड़ी हुई है और इसी विचारधारा से गंगा जमनी तहजीब निकल कर आई, जो आज भी हमारे मुल्क में बहुत मजबूत है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो इस गंगा जमनी तहजीब को कमज़ोर करना चाहते हों, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ये जो विचार गंगा जमनी तहजीब है, ये जो हमारी दौलत है, ये हमसे जुदा नहीं होगी, ये कमज़ोर नहीं होगी। और एक दिन पूरे विश्व को ही, जो कि हम चैलेंज हैं कि हम अनेक विचारधारा रखते हुए, अनेक आस्थाएं रखते हुए भी हम एक प्लेटफॉर्म पर, एक मुल्क में भाईचारे को मेंटेन कर सकते हैं। तो तुम 2 और 3 हो, तो तुम क्यों नहीं आपस में भाईचारा मेंटेन कर सकते हो? क्यों नहीं इस तहजीब, गंगा जमनी तहजीब को फॉलो कर सकते हो? तो नेचुरली
अगर हम ये कहें अनऑफिशियली, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो अनऑफिशियली तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत गुरु है, आध्यात्मिक गुरु था, है और रहेगा। जी बिल्कुल। फिरोज बख्त अहमद, you've heard it from you heard it from Hazrat Sayyid Muhammad Ashraf. He's the chairperson of the World Sufi Forum. I also have with me Pyare Khan, who was amongst the 9-member delegation who met the Prime Minister yesterday, and this proposal came into being, and the interest that the government showed in the idea of creating this Sufi corridor. But the larger essence of this decision that has been taken and the announcement that has been made is about quelling all these kind of negative narratives that are being built, like I said, within the country and outside of the country on an international forum. Does this help India to show the world that it indeed is a syncretic country, and all these views, counter views, opposing India as a nation with several religions living together, people of all faiths living together, is in fact true? No, that's very much true. And I really congratulate Hazrat Khwaja Ashraf Sahab, Sayyid Ashraf Sahab, the way he has encapsulated the spirit of Sufism. Let me tell you, he was talking about Ganga Jamni Tehzeeb, that is interfaith concord, love for each one. Apart from that, a very strong thing which actually is associated with Sufism is that it joins actually lacerated hearts and broken families. I have seen this, right? The Sufis actually help people. There are people who have broken soul, broken heart and mind, and with the help of Sufism, in fact, they get whatever their vision and mission is. Apart from that, so far as Sufism is concerned, it is just like, flowing a river. And the way the Prime Minister has taken up the cause of Sufi corridor, he's a go-getter. And, if he says something, he does it. The world has seen it. We have seen it. So, creation of a Sufi corridor is now on the anvil, and maybe it's just, a matter of time. In which city it comes up, let us see. Whether it is Rajasthan, where the biggest Sufi dargah is, or maybe it is somewhere in south, or maybe somewhere else. But creation of a Sufi corridor will prove that India is actually a land where people from all religions have existed, like sugar and milk. There are problems because of politicians. I am not blaming politicians. Not all politicians cater for their vote bank politics. But still, because of some vicious politics, people get broken. Otherwise, there is no example of interfaith harmony anywhere in the world. If we see India has welcomed all the religions, right? And even Prophet Muhammad, peace be upon him, he used to say that draughts of cool air come from the direction of India, right? And in fact, in India, Islam, unfortunately is under scanner. As Sayyid Saab also said that, people are, there are efforts to divide people, within the community, and in between the communities there is division. But let me tell you one thing, so far as India is concerned, these things will not go a long way. Dividing people and creating Hindu-Muslim enmity, I mean, it is just, a very small minority which actually keeps on doing it. But otherwise, Islam, which actually spread in India not through sword, but through the Khanqa system of the Sufis, because Sufis were the people who prayed, who actually fasted the whole day and prayed the whole night, and their eyes used to be red because of their devotion to God. And in the evening, when they broke their fast, in fact, they just broke it with water and with sukhi roti, right? And so this kind
this spirit is very much there in India. And if a Sufi corridor is created, like a corridor in Varanasi, I mean, it is still, I say there is no country anywhere in the world which is like India as far as peace is concerned. But if a Sufi corridor is there, if it is created, which I believe will be created, because Prime Minister Modi is here to stay. So, in fact, India will be the wish guru in terms of providing the message of peace. Absolutely. Also, Firoz Bakht Ahmed, we've seen that there is going to be the Grand Mosque in Ayodhya that is going to be built. We talk about the Sufi corridor. What more initiatives can be taken by the government of India? See, as far as a layman, I can say that government of India is taking quite a few initiatives to gel the people well from all the communities. And this program of, I think one of the, some MRM, Muslim Rashtriya Manch, they also took up the cause of Sufism. In fact, there was some mission which was taken up to many cities by some people belonging to that platform. Apart from that, you see, I believe that in the textbooks of India, especially from classes 5 to classes 5 to 10, if not 5 to 10, at least classes 5 to 9, there should be lessons on great Sufis. I remember, the name of Sufi Nand Rishi, right? Sufi Nand Rishi came from Kashmir, from the valley of Kashmir, right? Nuruddin Wali, his name was. But, in fact, I can name so many Sufis, at least a couple of chapters in all, for all the classes from, say, class 5 or class 7 to 10 or 11. This should be there in the NCERT syllabi on Sufis. And not only on Sufis, and great Sadhu Sant Mahatmas also, because all these people have been doing the job of making the world the God's spot. And God's spot means the spot of peace, the spot of harmony, the spot of, love. And I remember, once, this is the great Sufi saint, in fact, Kabir, he was also a poet. Kabir said one thing: whenever I speak to a person in front of me, I do not look a Hindu or a Muslim. I look a human. So it is the message of humanity and humanism that the Sufis give. And that is what finally, last 2 seconds, that is what Prime Minister Narendra Modi is doing, because he himself is made of that stuff which we call Sufism. Absolutely. Pyare Khan also on the telecast with me. Quickly, I only have about 5 minutes and I'm going to get a response from you, closing comments from you all. Pyare Khan ji, obviously we are looking at more such initiatives by the government of India in collaboration with the heads of religious faiths across the country, and particularly when it comes to the heads of religious heads in Islam. What more are you looking forward to in making India a more cohesive country where all religions are not just surviving but also flourishing? Hello, madam. Hello. Yes, Pyare Khan ji, please go ahead. देखिए, इस देश में क्या है, सारे समाज के लोग जो है वो मिलके रहना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि जिस देश में भी बहुत ज़्यादा कट्टरता होती है वो देश विकसित नहीं होता, वो देश तरक्की नहीं करता। तो ये हमारे देश की खासियत है कि आप उनसे क्वेश्चन करी थी कि यहाँ इस देश में मुस्लिम डरा हुआ है या ये है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश का मुस्लिम, अगर आप ROC के डाटा पे जाएंगे और पिछले जो 10 साल का आप उस पर बायोडाटा अगर निकाल के देखें तो मुस्लिम की कंडीशन क्या थी, आज इस देश में मुस्लिम एकदम फल फूल रहा है। तो ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारे देश की सरकार है। जी बिल्कुल। मौलाना कौसर हसन मजीदी जी, आपके लिए भी यही सवाल, यहाँ पे आप फ्यूचर क्या देखते हैं? जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इस्लाम के फॉलोअर्स है हमारे देश के अंदर, और किस तरह से
इस ये जो सिंक्रेटिक कल्चर है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसको आगे भी प्रमोट किया जाए? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल मुझसे करने के लिए, और इसका मैं जवाब देना चाहूंगा आपको कि मुस्तकबिल जो हमारा है वो उस मुस्तकबिल को तो तय कर दिया था 1947 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, और ये तय कर दिया था कि इस मुल्क में जब तक सैयद अशरफ साहब जैसी शख्सियत हम लोगों की सरपरस्ती करती रहेगी, इस मुल्क में हमेशा हमारा जो है मुस्तकबिल रोशन होगा। और जो रही बात की जो कि भय में मुसलमान है, तो माफ कीजिएगा, भय में तो मुसलमान उस वक्त भी नहीं था कि जब जिन्ना की जो है धार्मिक अंधता में जिसने हिंदुस्तान के जो है टुकड़े कराने की ख्वाब पाले थे और एक अलग मुल्क बनाया था, उस वक्त भी भय नहीं था और आज भी भय नहीं है। क्योंकि अगर हम पर कोई बात आती है तो हम उस बात को बोलें, उससे पहले बोलने के लिए कोई रमेश कुमार आ जाते हैं, कोई सुरेश कुमार आ जाते हैं। ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जहां पर हमारे हिंदू हमसाए हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बहुत ही शानदार है क्योंकि हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती हमारे सरों पर है और उनके ख्यालात और उनके विचार जो है वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ जी, आपसे ये मैं बात पूछना चाहूँगी, आगे क्या फ्यूचर आप देखते हैं जहाँ पे ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स बनाए जाएं, चाहे वो इस्लाम धर्म के लिए हो, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो, चाहे और कोई हमारे देश में कितने धर्म प्रैक्टिस होते हैं, उन सब धर्म के लिए? से हर मजहब को मान्यता मिली है, इज्जत मिली है, और कभी भी किसी भी धर्म के लिए किसी ने भी अपने मन में द्वेष नहीं रखा है। हाँ, अभी इस दौर में कहीं से ये नेगेटिविटी आती है, आवाज़ें उठती हैं, तो वो उनको एक पॉलिटिकल बेनिफिट कह लें या पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन देश में हमारा जो देशवासी है आज भी सूफी विचारधारा से इतना प्रभावित है और उसी विचारधारा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और सूफी विचारधारा है भाईचारा, इंसानियत, इंसाफ, अमन और शांति, मोहब्बत। तो इसी माहौल में भी हिंदुस्तानी जीता है। तो जब इसके खिलाफ कोई भी माहौल खड़ा होता है तो वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता। जैसे ही हम महसूस होने लगता है हिंदुस्तानियों को अब ज़्यादा हो गया है, तो फिर हम अपने इस भाईचारे को इतना मजबूत कर देते हैं और इस गंगा चमनी तहजीब को मजबूत कर देते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, उन्हें जहां होना चाहिए वो वहीं पहुंच जाते हैं। मुझे कोई भय नहीं है अपने मुल्क के मुस्तकबिल से। मैं खुश हूं और लोग तरक्की कर रहे हैं। और ये सच है कि हमें अपनी हुकूमत से कम्युनिकेट करना चाहिए और हमारी जो ज़रूरतें हैं उसे बताना चाहिए। जहां कमियां हो रही हैं जिम्मेदारों को चाहिए, और ख़ास तौर पर स्पिरिचुअल लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मैं उनके लिए पैगाम देना चाहूँगा कि अगर उन्हें कहीं कुछ महसूस हो रहा है तो उन्हें निकलना चाहिए। और हेड ऑफ द स्टेट जो हमारे मुल्क हैं, प्रधानमंत्री जी, चूँकि हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी होता है कि नीचे से बात आए। जो लोग पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जब उनसे बात आती है तो गवर्नेंस में वो चीज़ मददगार साबित होती है। जी बिल्कुल। तो बहुत सी चीज़ें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं तो उसको फिर किसी और भी अंदाज में पेश किया जा सकता है। तो नेचुरली वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और जब हमने उनसे ये बात किया और इतना खुलकर उन्होंने अपने तमाम विचारों को रखा, और जब मैंने सूफी कॉरिडोर के बारे में बात किया तो बड़े खुशी का इजहार किया और ये कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे बनाइए। ये तो देश हित में है, हमारे देशवासियों के लिए है। और जो आपने कहा कि वहाँ हर तरह के लोग आते हैं, हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं, वो पब्लिक प्लेस है, तो उनको सहूलत पहुँचाने के लिए हमारी हुकूमत जो भी कर सकती है उसे वो करेगी। और हमें हमेशा इस मामले में अपने साथ महसूस करें। आप बनाइए, हम इस पर आगे कदम बढ़ाएंगे। तो जब नीचे से बात, जी बिल्कुल, हमारे साथ आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी ऑन द टेलीकास्ट, एंड आई पर्टिकुलरली थैंक माय पैनलिस्ट फॉर गिविंग अस information and insight into Sufism and how this helps in
building a nation that celebrates all religions with equal fervor. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.